हार्दिक स्वागत है एट दिस वेरी प्रेस्टिजियस सेशन। सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपना कीमती समय निकालकर आप सभी यहाँ आए हैं इस सेशन का एक हिस्सा बनने, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। निवेदन करती हूँ सभी से कि अपने सेल फ़ोन कृपया स्विच्ड ऑफ या साइलेंट मोड पर ही रखें। कुछ ही समय में हम आगाज़ करेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन का। मैं चाहूँगी आप अपनी निर्धारित सीट्स पर बैठ जाएं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो बस प्रवेश कर चुके हैं बिल्डिंग में और कुछ ही समय में वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। So requesting all of you, and of course it's a very good morning to all of you at this very prestigious session, which is the investment opportunities in Uttar Pradesh. We will be commencing this session in a few minutes from now. We're expecting the arrival of our chief guest in a few minutes from now at the venue. Would request you to kindly keep your cell phones on a power off or vibrate mode. Again, would like to thank each and every one of our guests for taking the valuable time out and making it here at this very prestigious occasion. We're at the UP International Trade Show, just waiting the arrivals of some of our dignitaries and our chief guest. और हमारे चीफ गेस्ट पधार चुके हैं, तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। So very good morning, ladies and gentlemen. My name is Jazz, and it is a thorough privilege, a pleasure, a privilege to be standing here at this podium and getting the opportunity to host at the very prestigious UP International Trade Show. This is the first edition of the UP International Trade Show. It is a golden platform and opportunity for all levels of enterprises in Uttar Pradesh, micro, small, medium, and large, to showcase, sell, and expand reach to wider customers in India and overseas. Apart from businesses and enterprises, the trade show will feature a fair share of promotional and developmental schemes as well. This is a 5-day affair, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for UP International Trade Show for setting up such a great stature, which we are very grateful for them. Invest UP के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी. Invest UP, erstwhile Udyog Bandhu, is an organization of the state government of Uttar Pradesh dedicated towards promoting and facilitating investment in the state, besides solving various problems of existing and upcoming industries. Its vision is to transform the state of Uttar Pradesh into the most preferred investment destination in India by acting as an effective investment policy driver. And its mission as state's investment promotion and facilitation agency, Invest UP aims at attracting investment in the state through proactive contribution and policy formulation for rapid development of industries and infrastructure in the state. Can I have a huge round of applause for Invest UP, ladies and gentlemen? We are here today because we will be presenting a session on the investment opportunities in Uttar Pradesh, which is a knowledge session by Invest UP. And of course, to kickstart, we have with us Shri Jaswant Saini ji, our Minister of State Industry, Uttar Pradesh. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. I would request, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उनसे चाहूँगी कि वो दीप प्रज्वलन अपने हाथों द्वारा अगर यहाँ कर पाएं तो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात होगी. And I would also request the other speakers and the dignitaries to kindly join our minister to light this very auspicious lamp
at this August gathering. A very special moment indeed this is. अपने हाथों द्वारा दीप को प्रज्वलित करते हुए spreading positivity and enlightenment in this room. क्या बात है, बहुत एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं. क्या आगाज हुआ है. And of course our honorary speakers lighting this lamp marking the beginning of this very knowledgeable session. और मैं चाहूंगी श्री अभिषेक प्रकाश जी से, CEO इन्वेस्ट यूपी, मैं चाहूंगी अभिषेक जी से कि हम छोटा सा एक फूलों का गुलदस्ता प्रेजेंट कर सकें श्री जसवंत सैनी जी को. तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज. अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर आज आए हैं, हमारे बीच बने हैं, हम रूबरू हो पा रहे हैं उनसे, हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है. बहुत 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 धन्यवाद सर. I would now request Shri Anil Kumar Ji, a Principal Secretary of Infrastructure and Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh, to kindly start with a welcome address and a very knowledgeable presentation. Can I have a huge round of applause for Shri Anil Kumar Sagar Ji? मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, CEO इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, CEO यूपी सीडा मयूर महेश्वरी जी, CEO यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी श्री अरुणवीर जी, members on the dais, ladies and gentlemen. First of all, just I'd like to tell you, this is a very important trade show for the government of Uttar Pradesh, and I'm extremely delighted to welcome all of you here in our pavilion. Uttar Pradesh International Trade Show जब conceptualize हुआ था almost about 10 months back, it was immediately after Global Investor Summit, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि इसी तरह का जो इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम्स है ये निरंतर चलते रहने चाहिए, और जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनको आमंत्रित करते रहने चाहिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट में कि वो आएँ, यहाँ पर एग्जिबिट करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, गवर्नमेंट की नीतियों को जानें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं. तो उसी की एक कड़ी है इंटरनेशनल ट्रेड शो. दिस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश, एंड वी एक्सपेक्ट इट टू कैरी ऑन in next coming years. It's a global platform for entrepreneurs, innovators, manufacturers, exporters, and जो इसमें एक की फोकस रखा गया है वो ITs रखा गया है, MSMEs रखा गया है, स्टार्टअप्स रखा गया है. I feel very grateful कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इतने सारे बिजनेस लीडर्स यहाँ पर आए हैं, मेरे डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स हैं गवर्नमेंट में जो यहाँ पर आए हैं, और हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाएं. उत्तर प्रदेश, as you all know, is India's fastest growing economy, and it contributes nearly 8% to India's GDP. It is also India's largest consumer and labor market. कई साल पहले, 2 साल पहले, जब एक विजन दिया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमें ये निर्देश दिए थे कि अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश को भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो कम से कम होना चाहिए. ये सब जो आप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है.
हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है उसको साकार करें। Government of Uttar Pradesh has taken reformative steps. It has come out with many policies, many sectoral industrial policies, and they cover a gamut of industries. Gamut of industries, they include IT, ITS, they include data center, electronics manufacturing, defense, aerospace, electric vehicles, warehousing, tourism, etc., etc. कहने का मतलब बस इतना कि जो इतनी सारी पॉलिसीज़ लाए हैं वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, और एक ये कंफर्ट भी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारी पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिसीज़ रहने वाली हैं, चेंज नहीं होने वाली हैं। आप आइए, आप इन्वेस्टमेंट करिए और इन पॉलिसीज़ के लिए आपको सहूलियत दी जाएगी। In recent few years, UP has also transformed its way of doing business. In the ease of doing business rankings, which is taken out by Government of India, Uttar Pradesh is now an achiever state. What we have done, we have done major reforms in easing the number of compliances that were required earlier on. अब वो compliances काफ़ी कम हो गए हैं और we are also ensuring कि हम लोग जितनी ज़्यादा services online दे पाएं उतना अच्छा रहेगा। We are trying to minimize the person-to-person contact in delivering compliances. We want to achieve, finally इस सबसे फ़ायदा ये होगा कि आपको जितनी compliances चाहिए होंगी वो जल्दी मिल जाएंगी, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो रेडीली मिलेगा। आप देख ही रहे हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, एक नया एयरपोर्ट भी आ रहा है। We expect Uttar Pradesh to grow very fast, and we expect you to be a part of this journey. So once again, I thank you for being here and being a part of this journey that we have undertaken. Thank you so much. Thank you so very much, sir. I would request Shri Mayur Maheshwari ji, CEO UP SIDA, to please come at the podium, and he will be giving us a presentation by UP SIDA on the present and upcoming investment prospects in UP SIDA. Huge round of applause for Shri Mayur Maheshwari ji. आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री जसवंत सैनी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री अनिल सागर जी, मेरे कुलीग सीईओ साहबान श्री अरुणवीर जी, श्री अभिषेक प्रकाश जी, नीरज आखोरी जी, एमडी श्री सीमेंट, और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टॉरेंट ग्रुप। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी लोग बहुत से फेमिलियर फेसेस हैं, बहुत से एंकर इन्वेस्टर्स हैं जो यूपी के साथ हमेशा खड़े रहे और यूपी को आज जिस स्टेज पे हम लोग हैं वहाँ पे ले जाने में बहुत ही लीडिंग रोल आप लोगों ने अदा किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ यूपी के इस पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो में। यूपी की जर्नी को मैं थोड़ा सा बताऊँगा यूपी सीडा के माध्यम से। हम लोग की प्रेजेंस, जैसा आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में प्रेजेंस है। 155 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं हमारे, छोटे से लेके 1200 एकड़ तक, 100 एकड़ से लेके 1200 एकड़ तक, जिसमें बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स, लीडिंग ग्रुप्स, लीडिंग ब्रांड्स हमारे यहाँ बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट की जीडीपी में। I would be very keen to share the highlights of the amazing work that the government of UP has done, especially in terms of providing connectivity infrastructure, जो कि बहुत क्रिटिकल है किसी भी बिजनेस की डिसेबिलिटी कॉस्ट को कम करने में। आज हम सब जानते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट करीब 8 से 10% किसी भी बिजनेस में लगती है,
और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिस तरीके से स्टेट इस पे काम कर रहा है, चाहे वह वाटरवेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, रेल कनेक्टिविटी हो और एक्सप्रेसवेज, इफ ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ कंट्रीज एक्सप्रेसवे आर इन यूपी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इतने कम समय में ये सरकार ने करा है। दिस इज ऑल ईजिंग एंड लीडिंग टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट। ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स ना केवल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक में हेल्प करेंगे, बल्कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के रूप में स्थापित होंगे और हो भी रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और इसी के अनुरूप हम सभी विभाग उसी में, उद्योग विभाग पूरा उसी में कार्यरत है। आप देखिए, जैसा अभी मैं आपसे बता रहा था कि हमारी प्रेजेंस 155 इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, 14 हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं और 11 डिविजन्स हैं। हमारे जो मार्क्वी इन्वेस्टर्स की लिस्ट है, विच इज़ in front of all of you, and each one of you is a very significant contributor to this list, and I wish many more to join us. But in सब के लिए सबसे important है availability of optimum and adequate land. तो I would like to share with you कि इस समय हमारे पास लगभग 20,000 एकड़ से ज़्यादा का लैंड बैंक अवेलेबल है। आप सभी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड के अनुरूप 45 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस है जहाँ पे लैंड खाली है। तो ये आपके सामने एक स्नैपशॉट हमने रखा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स आएँ, अपनी यूनिट्स लगाएं और हमारे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इन सभी सर्विसेज का लाभ भी लें। अभी जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें यूपी सीडा के पास करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयूज़ हमने ग्राउंड किए। उसमें से 1 लाख करोड़ के एमओयूज़ जो अभी नेक्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उसमें हम लोग आज की डेट में वी आर रेडी टू प्रोवाइड दैट फुटेज टू ईच ऑफ द इंडस्ट्रीज विच वांट टू इन्वेस्ट टू द स्टेट। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अभी तक के जितने भी कंट्री में जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। लगभग 36.5 लाख करोड़ के एमओयूज़ आ गए हैं और 8 से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हम लोग एंकर करके उन्हें स्टार्ट कराने की स्टेज में है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोग के सहयोग से कंट्रीब्यूशन है राज्य के लिए। मैं आप सबका पुनः इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ। और हमारे उद्योग विभाग की तरफ से यूपी सीडा की तरफ से जो भी हमारे यहाँ से सर्विसेज देनी है, जो भी इन्वेस्टर हैंड होल्डिंग करनी है, उसके लिए भी आई एम वेरी पॉजिटिव दैट हमारे यहाँ से ये काम आगे बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। रिसेंटली जो हमारे यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स आए हैं, उसका एक स्नैपशॉट भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। संभल से लेके देवरिया तक और पीलीभीत से लेके चित्रकूट तक पैन यूपी प्रेजेंस है। लोग पहले कहते थे कि इन्वेस्टमेंट कुछ ही ज़िलों में आता था, स्पेशली जिस ज़िले में आप लोग बैठे हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि विगत 3 से 5 सालों में हमारी प्रेजेंस मेगा इन्वेस्टर्स के रूप में पूरे प्रदेश में है। तो आप हमारी पॉलिसीज़ का, यूपी सीडा की प्रेजेंस का लाभ उठाएं, क्योंकि बैकवर्ड रीजन्स में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम था, हमारे इंसेंटिव ज़्यादा हैं, लेबर की अवेलेबिलिटी चीप है और अब कनेक्टिविटी चूँकि हर डिस्ट्रिक्ट पे इतनी अच्छी हो गई है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे पहुँचें। आपके बिजनेस वॉल्यूम्स ज़्यादा होंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। सो यू शुड मूव टू प्लेसेस वेयर वी हैव मोर ऑफ इंसेंटिव्स अवेलेबल। खाली देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पिछले 2-3 साल में हमने एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं, चाहे यूनाइटेड किंगडम से हो, जैसे कि यूके पेंट्स, एबी मॉरी, वेबली स्कॉट, मैपई इटली से, यूएस की कंपनीज़ मैंने आपके सामने कहा, जर्मनी का वीका, वॉनवेलिक्स, फ्रांस का एयर लीके और साइप्रस से डीएफएम फूड्स। ये एक जस्ट स्नैपशॉट है कि लोग यूपी में कितना कीन है आने के लिए और हमारे साथ हमारी इस ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट ये सब हो इसलिए पाया कि
हम लोगों ने सारी सर्विसेज अपनी ऑनलाइन कर दी हैं। लोगों को साइट के और फैक्ट्री के चक्कर ज़्यादा लगवाने चाहिए, दफ्तरों के चक्कर कम लगने चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पहले 2 सर्विसेज मात्र ऑनलाइन थी, अब हमारी 33 सर्विसेज ऑनलाइन हैं, जो एक इंडिकेट करता है। और आप लोग के सहयोग से उसमें जो भी सजेशंस होंगे, वी वुड बी वेरी कीन टू इनकॉर्पोरेट। ये एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, जिस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम लोग 1 इंडस्ट्री पर डे का एवरेज आता था, आज हम लोग 3 से 4 इंडस्ट्री पर डे चलती हैं, और उन 3 से 4 इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो बात होती थी कि कितनी यूनिट्स ग्राउंड पे आई, विच इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, तो ये हो पाया है इस आईटी बैकबोन की वजह से। एंड वी प्राउडली एक्नॉलेज द एफर्ट्स डन बाय द एंटायर डिपार्टमेंट। और आप सभी के सहयोग से 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमको इस पोर्टल के माध्यम से हमारे पास ऑनलाइन आती हैं। तो अलॉटमेंट से लेके उनका ट्रांसफ़र तक, माइग्रेशन तक, सारी पॉलिसीज़ हम ऑनलाइन ही करते हैं। इस सब बैकड्रॉप के बाद जो जैसा मैंने बताया कि हमारी सारी पॉलिसीज़ ऑनलाइन हो गई हैं, और जो हमारे कुछ की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, प्रयागराज में, बहेड़ी में और वाराणसी में हमारे एग्रो फूड पार्क्स हैं। आगरा में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आ रहा है। कन्नौज में हमने एक इत्र पार्क बनाया है जो कि एरोमा और परफ्यूम इंडस्ट्री को केटर करेगा, विच इज़ अप एंड रनिंग। आप कभी भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाएं तो 220 किलोमीटर एग्जिट पे आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा। प्लीज़ विजिट दैट पार्क। प्लास्टिक सिटी हम लोग औरैया में बना रहे हैं, अमेठी में, पीलीभीत, कानपुर सिटी, हाथरस, फर्रुखाबाद और मथुरा। यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स में बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स हैं और वहाँ पे लैंड भी अवेलेबल है। सो विद दिस बैकग्राउंड आई थैंक ऑल ऑफ़ यू। आप लोग सब यहाँ आए, और आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि सब इन्वेस्टमेंट करें, उत्तर प्रदेश में आइए, कम टू यूपी एंड इन्वेस्ट इन यूपी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्री महेश्वरी जी। उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है एवं लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ यह भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है तथा भारत का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस बात पर। और इसी के साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री नीरज अखौरी जी को, एमडी श्री सीमेंट, जो अपने अनुभव हम सभी के साथ आज शेयर करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी यूनिट्स एस्टैब्लिश की हैं उत्तर प्रदेश में और आज वो कुछ कहना चाहते हैं। श्री नीरज अखौरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्टेट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री माननीय जसवंत सैनी जी, श्री अनिल कुमार सागर प्रिंसिपल सेक्रेटरी IIDD, श्री मयूर महेश्वरी जी CEO UP SIDA और श्री अभिषेक प्रकाश CEO इन्वेस्ट UP। श्री सीमेंट की ओर से आपके और आपके नेतृत्व को हम लोग बधाई देना चाहते हैं और हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि एक ऐसे माहौल का, एक ऐसे इकोसिस्टम का की शुरुआत हुई है जो मेरे ख्याल से इस देश के लिए नहीं बल्कि देश के बाहर भी एक इंस्पिरेशन का काम कर सकेगी। उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन सकती है, इसमें तो हम लोग सबको याद हैं। लेकिन हम लोग का अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल $1 ट्रिलियन से कहीं आगे जाने का भी है। राज्य में आपसी विश्वास जो आप लोगों ने विकसित किया है और बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के आगे बढ़ाने के लिए जो एक माहौल बनाया है, विश्वास करेंगे कि उद्योगपतियों की तरफ से, व्यवसाय के लोगों की तरफ से पूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन आपका मिला है
और ये पूर्ण समर्थन मार्गदर्शन 1 ट्रिलियन नहीं, इससे कहीं ज़्यादा स्तर का एक इकोनॉमी बनाने में कामगार होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उनके प्रतिबद्धता और समर्पण को साझा करना चाहता हूँ। आज से कुछ महीने पहले हम लोगों को आमंत्रित किया गया था और संबंधित उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से स्टेज पर बुलाकर प्रोत्साहन की किस्त सौंपी गई थी। अपने 30 साल के लंबे अनुभव में यह ऐसा एक पहली बार हमने देखा है। यह हम सभी के लिए बिना किसी डर या संदेह के लिए राज्य में संपूर्ण निवेश करने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक महान साक्ष्य, सम्मान, प्रेरणा का स्रोत है। श्री सीमेंट उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग 25,000 करोड़ की एक टर्नओवर वाली कंपनी जो अगले 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ तक जा रही है, 50 मिलियन टन से लगभग 100 मिलियन टन का एक रास्ता तय कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान है। श्री सीमेंट भारत के 3 लीडिंग सीमेंट प्रोड्यूसर्स में से एक है और लगभग भारत का 10% मार्केट शेयर श्री सीमेंट का रहता है। हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा निवेश का प्लान है और उस प्लान से हम अपने 100 मिलियन टन के इस सपने को संभाल पाएंगे। यूपी हमारे लिए नया नहीं है। आज से कुछ साल पहले इसी नोएडा के बगल में बुलंदशहर में हम लोगों ने यहाँ पहला निवेश किया था। आज मुझे बोलते हुए बड़ी गर्व का महसूस हो रहा है कि आज से कुछ हफ्ते बाद ईटा में हम लगभग 1,000 करोड़ का एक नया हम लोग एक प्लांट लगा रहे हैं। उसका भूमि पूजन है और ईटा के बाद कानपुर में और कानपुर के बाद प्रयागराज में 1,000 करोड़ के 2 और संयंत्र लगने की बात हो रही है और मेरा विश्वास है कि ऐसा हम लोग बहुत ही जल्द कर पाएंगे। इसके अलावा श्री सीमेंट रेडी मिक्स में है, वेयर हाउसिंग में है, ट्रांसपोर्ट में है और इन सभी व्यवसायों में हम लोग उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से निवेश करना चाहेंगे। अपनी कंपनी की ओर से मैं यहाँ बैठे हुए सभी माननीय अपने दर्शकगण का, सरकार के माननीय मंत्री जी का, सरकार के अधिकारियों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए और भविष्य में भी आपसे निरंतर संबंध की और निरंतर समर्थन की आशा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Ghori, for that insightful address. पिछले कुछ वर्षों में राज्य में विश्व भर से निवेश आकर्षित हुआ है। राज्य सरकार अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के अपने मिशन में नए क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर नरेंद्र कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टोरेंट ग्रुप, जिन्होंने जो अपने अनुभव हमसे बांटने आने वाली हैं। जी हाँ, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you, Madam. Honorable Minister of State Industries, Shri Jaswant Saini ji, Shri Anil Kumar Sengar ji, Principal Secretary, IID, Government of UP, Shri Mayur Maheshwari ji, CEO UP SIDA, Shri Abhishek Prakash Singh ji, CEO UP Invest, Shri Lokesh, CEO Noida, distinguished guests on the dais, participants from the industry and from media, and other my colleagues. Good morning, all of you. At the outset, I would like to thank the UP government for making Torrent Group as a part of this event, that is experience sharing by industries. I also like to thank government of UP on behalf of Torrent Group for giving opportunities
to be part of Honorable Chief Minister Sri Adityanath Yogi ji for the vision for making UP as a $1 trillion economy. Torrent is developing CGD infrastructure in UP, distributing power in Agra, establishing pump storage hydro plant, solar park, biogas, hydrogen plant, and planning for setting up the pharma plants. While executing these projects, the Torrent is getting full support from Government of UP for fast government clearances, all NOCs, whether it's required from the DM or setting up the CNG station, all approvals from the PWD, NHI, Forest, Nagar Nigam for laying our pipelines and other environment clearances. The senior bureaucrats are easily available. They are giving sufficient time to resolve our issues. Senior officers are also available for the meetings even on the weekends, and they are giving quick decisions. Industries are now realizing that earlier the companies were chasing government official for their help, but now the scenario has changed, and now the government is chasing companies for providing the support in implementing the project as per the given timelines. The implementation of online single window system, that is Nivesh Mitra, and with the help of Udyog Bandhu department, the UP state has achieved the second rank in India changing from the 12th rank as ease of doing the business. The Torrent Group is having a turnover of 22,000 crore and market capitalization of almost 62,000 crore. Has a strong presence in pharma, power, city gas distribution sectors. Torrent Pharma is the flagship company of the group, in dominant player in cardiovascular and CNS segment with a global presence in 40 countries. Torrent Power is one of the largest private sector player in the power sector with the presence across the entire power value chain, that is power generation, transmission and distribution, all three. And Torrent Power has installed capacity of almost 4,000 megawatt, and we have the customer almost 37 lakhs in 10 cities and 3 states. Torrent Gas is one of the leading CGD industry in India, and we are operating in 34 districts all over the world, all over India, and in Union Territory, Pondicherry. The Torrent Gas is authorized to operate in 15 districts in UP, that is the Moradabad, Auraiya, Kanpur, Dehat, Etawah, Gorakhpur, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Mathura, Basti, Ambedkar Nagar, Azamgarh, Mau, Balia, Gonda and Barabanki districts. So we have already made almost 150 CNG stations, laid 700 kilometers of steel pipelines. We have provided more than 60,000 household connections. We have laid more than 3,000 kilometers polyethylene pipelines for supplying the gas to the house individuals. We are also setting up 500 kilowatt green hydrogen plant and blending facilities at the Khanipur and Gorakhpur, utilizing an alkali electrolyzer aimed to blend approximately 2.5% of hydrogen into the CGD network. So their investment for the hydrogen we are going to make near about the 4,000 crores. The Torrent Power is distributing power in Agra city in the franchise mode. So we are supplying almost more than 4 lakhs of the customer there. And the interesting thing to note is that the transmission losses of Agra city gas distribution, which was initially 61%, has been reduced to single digit, that is 9.7%. Pump storage plant is another project, is well-established technology and provides the energy storage capacity along the adequate peaking power reserves.
So we are setting up the 2 plants, a PSH in Sonbhadra district. Each is having 2,400 megawatt capacity. One and second one is 2,000 megawatt capacity. So total it is 4,400 megawatt capacity. The total investment in the Sonbhadra district will be around 24,000 crores. In line with the Prime Minister initiative and the G20 Delhi declaration, the Torrent Group has started initiative action for setting up 5 compressed biogas plant in 5 districts of UP, and each will cost near about 100 crores. So we are making 5, which will cost near about 500 crores. The Torrent has also signed MOU with the UP government to install 2,000 megawatt solar park in Bundelkhand area. This will also involve 10,000 crores of investment. The MOU has also been signed with UP government for investment for making the pharma plants of 250 crores. So there is a lot of investment the Torrent Group is making in all the fields. My request at last I want to do it that everybody should invest. The माहौल जो UP में बहुत अच्छा है, तो we should go for this. We should establish the new industry here. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Dr. Kumar. And now we will be presenting a very insightful video on investment opportunities in Uttar Pradesh. एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको सुनाएंगे. Network side with you India's growth engine. Law and order, world-class infrastructure, enabling policy framework, business-friendly governance. These are the 4 elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister Shri Narendra Modi, Uttar Pradesh is on its way to becoming the most preferred investment destination for global investors and industrialists. One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. Known for its cultural vibrance, value system, and 250 million populace, UP is not only India's single largest consumer market, but also a bountiful supplier of skilled human resources. The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, pharma and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement,
UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways, and the futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single-window MOU monitoring portal, Nivesh Sarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated New Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies to attract investments in various focus sectors. To catapult the state towards becoming a $1 trillion economy, we followed a global to local approach. After thorough consultation with all stakeholders, the newly formed policies were showcased internationally, then nationally, and then to the existing domestic investors within UP, generating immense global investor interest. Policymakers, corporate leaders, business delegations, academia, think tanks, and leaders from across the globe to collectively explore business opportunities and forge global investment ties in Uttar Pradesh. Opportunities shall also spike employment opportunities for the state's young and skilled workforce. As India enters its Amrit Kaal, the golden period of independence, the government of Uttar Pradesh, under the guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ensures you all of the most conducive business environment and a vibrant ecosystem for sustainable growth that shall play a pivotal role in India's journey to become a $5 trillion economy. Come aboard on our global takeoff to become the most favored business destination. उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। Uttar Pradesh, New India's growth engine. क्या बात है, वो कहते हैं ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इस वीडियो को देखा और बार बार चाहती हूँ मैं मुझे ये अवसर मिले कि इस वीडियो को बार बार देख पाऊं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। निवेशक नीतियों, सुधारों और सक्रिय प्रशासन के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले कुछ वर्ष क्षमा कीजिएगा, प्रदेश की औद्योगिक क्षमता का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार पर्यावरण अनुकूल सतत विकास पर भी बल दे रही है। उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक सफलता प्राप्त की है। ईज ऑफ बिजनेस में सुधार करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था 11% की दर से प्रगति कर रही है। And in just a few minutes from now, कुछ ही देर में हम आगे की ओर चलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बस कुछ ही देर में श्री अरुणवीर सिंह जी को। Are we ready with the PPT? कंसोल से पूछना चाहूंगी, Are we ready with the PPT?
राज्य सरकार ने राज्य के व्यापार, वाणिज्य और निवेश की संभावनाओं के विस्तार के लिए लॉजिस्टिक्स की सुलभता एवं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. Today we are at the UP International Trade Show, where we have so many dignitaries, so many officials, so many ministers, all under one roof. और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक छत के नीचे हम सभी एकत्रित हुए हैं. So can we have a huge round of applause for UP International Trade Show for making this possible, for creating this opportunity and for creating this podium and medium for us to be present and share our knowledge and our insights. Ladies and gentlemen, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन हमारे लिए. और अब आगे की ओर चलते हुए मैं श्री अरुणवीर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी CEO ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि प्रकाश डालेंगे निवेश के अवसरों पर NCR रीजन में. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार. शुक्रिया. आदरणीय औद्योगिक विकास मंत्री जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर सर, CEO UP सीडा मयूर माहेश्वरी जी, CEO इन्वेस्ट UP अभिषेक प्रकाश जी, हमारे श्री सीमेंट के नीरज जी और टोरेंट ग्रुप के नागेन जी, हमारे साथ सामने बैठे हुए इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के अध्यक्ष, महासचिव, सभी इंडस्ट्री के प्रतिनिधिगण, सभी यहाँ अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं तथा सभी आगंतुक, मैं यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निवेश के अवसरों के बारे में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ. अभी आपने बहुत अच्छे एक मूवी देखी और उसकी शुरुआत एक हवाई जहाज़ के साथ हुई जिसके ऊपर लिखा था वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए इतना ही बताना है कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और उसमें सबसे ऊपर लिखा है वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर. बाकी उसके विंग्स पे आपने देखा, टेल्स पे देखा आपने, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात लिखी है. तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के साथ साथ बहुत तेज़ी से निवेश आकर्षित हुआ है. लगभग 2000 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर निवेश कर रही हैं और बहुत सारी नए ढेर स्कीम के साथ हम यहाँ पर ला रहे हैं. यह औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो यमुना प्राधिकरण है, यह 6 जिलों में फैला है. यह गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा तक जाता है. 165 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है. इसमें गौतम बुद्ध नगर जनपद, बुलंदशहर जनपद, अलीगढ़ जनपद, मथुरा, हाथरस और आगरा पड़ता है. अभी हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है गौतम बुद्ध नगर में फ़ेज़ 1 का, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में फ़ेज़ 1 का डेवलपमेंट हो रहा है. फ़ेज़ 2 में हम लोग अलीगढ़ में टप्पल के पास लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं और मथुरा में एक हेरिटेज सिटी, वृंदावन के लिए हेरिटेज सिटी बना रहे हैं और फ़ेज़ 3 का प्लान आगरा के लिए हमारा आना बाकी है. ये जो 165 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसमें दोनों तरफ 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक औद्योगिक नोटिफाइड एरिया है, भू क्षेत्र है, जिसमें विकास का काम हो रहा है. यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अभी सारा डेवलपमेंट क्लस्टर बेस्ड हो रहा है. इंडस्ट्री को क्लस्टर बनाया जा रहा है, के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहाँ पर MSME का क्लस्टर बनाया गया है, हैंडीक्राफ्ट का क्लस्टर बनाया गया है, अपैरल पार्क का क्लस्टर बनाया गया है, टॉय पार्क है, डाटा पार्क है, सेमीकंडक्टर पार्क है. इसके अलावा और भी आने वाले लेदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क और कई तरह के नए पार्क, 7 नए पार्क और भी ऑटोमोबाइल पार्क. जो अभी आपको पता है यहाँ मोटो GP का आयोजन हो रहा है, तो मोटो GP में काफ़ी लोग आ रहे हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र के, जो बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं. तो उनको उनके निवेश आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को एक इन्वेस्ट समिट कर रहे हैं. तो उसके लिए हमने 5 एकड़ का एक डेडिकेटेड ऑटोमोबाइल क्लस्टर भी यहाँ पर चिन्हित किया है. उसकी ज़मीन भी ऑलरेडी हमारा SIA हो गया, सेक्शन 11 हो गया है. वो वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी एक नया क्लस्टर बनाए जाने का
प्रस्ताव किया गया है। ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट है, इसके लिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मैं संक्षेप में आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ बन रहा है वो बता दे रहा हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, आप लोगों को जान के प्रसन्नता होगी कि उसका रनवे पूरी तरह से तैयार हो गया है। 4 किलोमीटर लंबा रनवे पूरी तरह से तैयार हो गया है। आपको यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि टर्मिनल बिल्डिंग अपने सेकंड लेवल तक आ गया है और ज्यूरिक की टीम, ये 100% FDI प्रोजेक्ट है, वह अभी 2-3 दिन पिछले लग करके उन्होंने सारे फर्नीचर्स, टाइल्स और कैसा एयरपोर्ट लगेगा, कैसे उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से, यहाँ हम ODOP की बात कर रहे हैं, हर राज्य की हर चीज़ उस एयरपोर्ट पर प्रदर्शित होगी, जिससे आपको एहसास होगा कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के संस्कृत और उसके झांकी को सजोते हुए इसका टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारा टर्मिनल बिल्डिंग के साथ हमारी ATC वहाँ पर तैयार हो गई है। अब ये लगभग फरवरी के दूसरे सप्ताह में DGCA को सौंप दिया जाएगा, फिर 4 से 6 महीने का ट्रायल होगा और अगले साल सितंबर में इसकी अपॉइंटेड डेट है। तब से यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो तीनों प्रकार की होंगी। कई बार लोगों को ये लगता है कि केवल कार्गो का एयरपोर्ट बन रहा है, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, कार्गो एयरपोर्ट है। और इसकी जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो की है और माननीय प्रधानमंत्री ने की है, इसको इतना बड़ा इसका साइज़ है कि इसमें 6 रनवे होंगे और सभी रनवे पैरेलल होंगे। बाकी जो रनवेज होते हैं वो क्रॉस रनवेज होते हैं, तो उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ 6 पैरेलल रनवे का एयरपोर्ट बन रहा है, उसके साथ MRO बन रहा है, एविएशन हब का एक अलग डेडिकेटेड सेक्टर बन रहा है। जब ये अगले 70 साल में जितना विकास एयरपोर्ट का हो सकता है, जो कि 2 से 25 मिलियन पैसेंजर को कैटर करेगा और 20 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो ले जा सकेगा, उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण अभी हो गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। साथ ही साथ इसके अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इस जेवर एयरपोर्ट को यमुना क्षेत्र को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की और 31 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जिसमें 22 किलोमीटर 22.8 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है और लगभग 8 किलोमीटर यूपी में पड़ता है। एक नया एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो पहले से जहां कुछ भी नहीं था उसके बनाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बल्लभगढ़ से सीधे जेवर एयरपोर्ट जोड़ा जा रहा है और 31 किलोमीटर का काम NHAI बना रही है। ऑलरेडी इसमें सारा पैसा रिलीज़ किया चुका है, दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अगले साल सितंबर में एयरपोर्ट शुरू होने के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण जुड़ा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट के जाने के लिए इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। पार्ट टैक्सी की योजना लाई गई है। पार्ट टैक्सी की योजना इसलिए लाई गई है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जब एयरपोर्ट पे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे जब आपका बायर आएगा तो उस बायर को अपने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अपने अपने इंडस्ट्रियल जो हब्स हैं उसमें जाने के लिए उसको अलग से कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट टैक्सी के माध्यम से वो हर सेक्टर में, हमारे यहाँ 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, 28, 29, 32, 33 और 21, इन सभी में जाने के लिए पार्ट टैक्सी चलाई जा रही है। पार्ट टैक्सी जो है ड्राइवरलेस होगी और इस पार्ट टैक्सी की योजना से सीधे बायर अपने अपने इंडस्ट्रियल हाउसेज में पहुंचेगा, अपने सामान सेलेक्ट करेगा, वहां पर सोशल कंप्लायंसेस देखेगा, बाकी कंप्लायंसेस देखेगा कि कैसे फैक्ट्री चल रही है। उसके बाद अपने उत्पादों का चयन करके ऑर्डर दे करके अगर उसको घूमना होगा तो वृंदावन जाएगा, उसके लिए भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और उसको आगरा जाना होगा तो आगरा भी इसी एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर पे आगरा जाएगा और वापस आकर के जेवर एयरपोर्ट से चला जाएगा। ये पार्ट टैक्सी की जो परियोजना है वो हिंदुस्तान की पहली परियोजना है जो पार्ट टैक्सी होने जा रही है, दुनिया की 5वीं है और दुनिया की सबसे लंबी पार्ट टैक्सी परियोजना होगी। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि ये पार्ट टैक्सी परियोजना का बिड निकल चुका है, ग्लोबल इसकी बिडिंग हो चुकी है, इसकी प्री बिड हो चुकी है। अगले हफ्ते इसकी बिड खुलेगी और इसमें जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियां जो पार्ट टैक्सी बनाती हैं और चलाती हैं, वो सभी 5 कंपनियां यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं, बिड कर रही हैं। तो इसलिए ये पार्ट टैक्सी आपके दरवाजे पर खड़ी है। अगले 15 से 20 दिनों में इसका डेवलपर कंसेशनायर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार रैपिड रेल के लिए यहाँ पर स्टडी हो रही है। मेट्रो रेल पहले आने की बात थी, लेकिन उसकी स्पीड
से IGI और जेवर को जोड़ने में कठिनाई हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हाँ रैपिड रेल को जो मेरठ से सराय काले खां तक आई है उसको सराय काले खां से लेकर के जेवर तक जोड़ा जाए। उसकी DPR बन रही है, तो ये रैपिड रेल से भी एरिया जोड़ने जा रहा है। इसके अलावा एक आपके लिए नई बात बता रहा हूँ कि ये अमृतसर कलकत्ता लाइन में जो DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उससे भी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। और जेवर से एयरपोर्ट से लेकर के चोला तक एक नई रेलवे लाइन बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है और इस साल के बजटरी प्रोविज़न में उसका डिक्लेरेशन होगा, आप लोगों के सामने आएगा। ये 16 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच एक्सप्रेसवे भी होगा, रेल लाइन भी होगी और ये जाके चोला रेलवे स्टेशन पे जुड़ेगा और चोला के पास ही बैर है जो कि DFC का मेजर नोड है। यहाँ से फास्ट जो है वो तेजस या वंदे भारत जैसे ट्रेन भी चलाई जा सकेंगी, जो कि आनंद विहार होते हुए IGI को सीधे जेवर एयरपोर्ट से जोड़ सकेंगी। तो ये ना केवल ये लॉजिस्टिक और कार्गो के लिए होगा, बल्कि पैसेंजर के लिए भी और IGI को जेवर से जोड़ने के लिए भी कारगर होगा। अभी जो हम स्कीमें ला रहे हैं कुछ आपको बता दे रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उसमें आइए। हम कल एक स्कीम ला रहे हैं डाटा पार्क की। डाटा पार्क सेक्टर 28 में है, उसके लिए डेडिकेटेड 2 से 20 kV का सब स्टेशन है। वहाँ पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लेट डाउन है और यमुना एक्सप्रेसवे से मुश्किल से 20 मीटर दूरी पर स्थित है। जैसे ही आप उतरेंगे उसके लिए इंटरचेंज है और आप सीधे डाटा पार्क में पहुंच जाएंगे। डाटा पार्क में हमारे पास 7 प्लाट हैं, एक 30 एकड़ का, एक 10 एकड़ का और 5 एकड़ के हैं। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि डाटा सेंटर लगाने के लिए भी मुझसे 2 लोग मिले थे इन्वेस्टर जो कि डाटा सेंटर के लिए बात कर रहे थे। आप सभी से अनुरोध है कि डाटा पार्क के लिए आप आइए। इसके अलावा यहाँ पर मिक्स्ड लैंड यूज़ के कंसेप्ट के साथ इंडस्ट्रियल स्कीम आ रही है, वो भी कल आ जाएगी, जिसमें कि नीचे आप कमर्शियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल रखेंगे जैसे कि यूरोप में होता है, जैसे और जगह डेवलपमेंट है, अमेरिका में है। और इस मिक्स लैंड यूज में 75% आप इंडस्ट्री का यूज कर सकेंगे, 12% आप ग्रुप हाउसिंग कर सकेंगे, 8% कमर्शियल कर सकेंगे और 5% फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशनल कर सकेंगे। जो मिक्स्ड लैंड या मल्टी लैंड यूज़ है वो कंसेप्ट यमुना में लागू कर दिया गया है और सर इस प्रयोग से काफ़ी यहाँ पर इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलेगा, एक नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा मिक्स लैंड यूज के अलावा इंडस्ट्री के छोटे प्लाट्स, आपको ये भी जान के आप सब अवगत ही हैं, बहुत ही खुशी होगी कि इंडस्ट्री का अलाटमेंट अब सीधे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर कर दिया गया है और ऑक्शन समाप्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आप लोगों की ही मांग पर ऐसा किया गया है। तो इंडस्ट्री की और प्लाट्स की स्कीम, साथ ही साथ 4000 मीटर से छोटे प्लाट की भी स्कीम यमुना प्राधिकरण लेके आ रहा है। वो छोटे उद्योगों के लिए, MSME के लिए, स्मॉल स्केल के लिए ला रहा है और उसमें आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, उसका अलाटमेंट लॉटरी के बेसिस पे होगा और उसका फॉर्म एक सिंगल पेज का फॉर्म है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप प्रतिभाग कर सकते हैं। तो जो सूक्ष्म और लघु उद्योग के लोग हैं उनके लिए एक नया अवसर दिया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की जो नेटवर्थ की बाध्यता है, जो लिक्विडिटी की बाध्यता है, जो टर्नओवर की बाध्यता है, उससे भी उनको अलग किया गया है और स्टार्टअप के लिए अलग से 20% रिजर्वेशन दिया गया है जिससे कि स्टार्टअप के लोग भी उसमें प्रतिभाग कर सकें। ये स्कीम भी हम लोग ला रहे हैं। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए 6 प्लाट की एक स्कीम ला रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंडस्ट्री आएगी तो स्किल अपग्रेडेशन के लिए और साथ ही साथ उसके हैंड होल्डिंग के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर नरसी मुंजी ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी बना रही है, 4 स्कूल अपनी यूनिवर्सिटी बना रही है, MDI गुड़गांव अपनी यूनिवर्सिटी बना रही है और JBM यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं और 6 और यूनिवर्सिटी की स्कीम लेकर के हम कल आ रहे हैं, जो कि 25-25 एकड़ की यूनिवर्सिटी की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप ला रहे हैं। और देश के और विदेशों के, फॉरेन के भी ऑलरेडी 11 यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास इंटेंट हैं और MU हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, तो उसको मीट आउट करने के लिए स्कीम लाई जा रही है। तो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए, होटल के इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लाजास के लिए, दुकानों के लिए, कियोस्क के लिए सारे अवसर यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप सभी आएँ और इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ डेवलप हो रहा है,
जो कि शायद देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाई जा रही है। चूँकि पानी से घिरा नहीं है तो एक वाटरवेज को छोड़ करके ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रैपिड रेल कनेक्टिविटी हो। और यहाँ पर आप को एक बात और बताना चाहूँगा कि सरायकाला खां से बनारस तक जाने वाली बुलेट ट्रेन का भी पहला स्टॉपेज सेक्टर 28 में और जेवर एयरपोर्ट के पास है। तो बुलेट ट्रेन भी इस एरिया से पास हो रही है, उसकी भी DPR बन गई है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अनुकूल कोई जगह नहीं है, इससे अनुकूल कोई अवसर नहीं है। उत्तर प्रदेश से बेहतर प्रदेश नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इन्वेस्ट यूपी का जो अपना फोरम है, जो निवेश मित्रा की साइट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो अवसर हैं, वो इसमें इसको नए आयाम दे रहे हैं, नई पहचान दे रहे हैं। आप आइए, उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निवेश करिए, नोएडा में निवेश करिए, ग्रेटर नोएडा में निवेश करिए, यूपी सीडा में निवेश करिए। ये सारे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपके लिए बाहें फैलाए हुए खड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री अरुणवीर सिंह जी। और अब वो समय आ चुका है जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, उन्हें सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। मंत्री बनने के बाद भी अपने पशुओं की वो देखभाल करते हैं, मंत्री पद पाने के बाद भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर रोज़ अपना खेती का काम भी करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हर सुबह 6 बजे जग जाते हैं और नित्य हवन भी करते हैं। और हाल ही में उन्होंने आम इंसान की तरह अपने खेत में गन्ने की बुआई भी की है। जी हाँ, वो VIP लाइफस्टाइल से परहेज रखते हैं। और आज जैसा कि मैंने कहा, हमारे कान तरस गए हैं उन्हें सुनने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ऑनरेबल श्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश ऑनरेबल श्री जसवंत सैनी जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि इस पूरी की पूरी सभा को संबोधित करें। हमारे लिए वो किसी भी प्रेरणा से कम नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार सागर जी, यूपी सीडा के CEO श्री महेश्वरी जी, इन्वेस्ट यूपी के CEO श्री अभिषेक प्रकाश सिंह जी, यमुना अथॉरिटी के CEO श्री अरुणवीर जी, श्री नीरज ऑर्थो जी, MD श्री सीमेंट, श्री अनिल कुमार जी, और इस कार्यक्रम में मेरे सम्मुख उपस्थित औद्योगिक विकास संघों के पदाधिकारीगण, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ ये भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार भी है। उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके एक अच्छा निवेश का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया गया। ये भारत का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनकर के उभरा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। तो निवेशक अनुकूल नीतियों, सुधारों, सक्रिय प्रशासन के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में
विश्व भर में निवेश आकर्षित हुआ। राज्य सरकार अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के अपने मिशन में नए क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश की औद्योगिक क्षमता का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार पर्यावरण अनुकूल सतत विकास पर भी बल दे रही है। उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक सफलता प्राप्त की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था 11% की दर से प्रगति कर रही है और ये राज्य देश के घरेलू उत्पाद में 8% की भागीदारी करता है। राज्य में कनेक्टिविटी विकास में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए व्यापक रेल, हवाई, एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य के व्यापार, वाणिज्य और निवेश की संभावनाओं के विस्तार के लिए लॉजिस्टिक सुलभता, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों एवं जेवर तथा अयोध्या में नए हवाई अड्डों के विकसित होने से उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। प्रदेश ने 13 वर्तमान एवं प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के साथ स्वयं को एक्सप्रेसवे के रूप में स्थापित किया है। राज्य में 6 एक्सप्रेसवे पूर्ण हो चुके हैं और 7 एक्सप्रेसवे विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उत्तर प्रदेश में 16,000 किलोमीटर का भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इस लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रमुख पूर्वी निर्यात केंद्रों जैसे प्रयागराज, वाराणसी को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाला देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवे विकसित किया जा रहा है। इसका वाराणसी से हल्दिया तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबा मार्ग राज्य में पहले से संचालित है। वाराणसी में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर राजघाट, रामनगर एवं प्रयागराज टर्मिनल पर राष्ट्रीय जलमार्ग के किनारे विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल संचालित हैं। दादरी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, बोराकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक स्थापना के विकास के लिए राज्य सरकार ने अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान लागू करने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्य में अवस्थापना विकास के क्रियान्वयन के लिए पोर्टल पर प्रमुख महत्वपूर्ण लेयर्स को एकीकृत कर लिया गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उद्यम प्रोत्साहन, नागरिकों के जीवन स्तर के उन्नयन, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा को पूरा करने के हमारे प्रयास को बढ़ावा मिला है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में काफ़ी बदलाव आया। निवेश सारथी नामक एक पोर्टल विकसित किया गया जो MOU हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को आसान करेगा तथा निवेशकों के प्रश्नों, शिकायतों के निवारण, निवेश प्रस्ताव को दर्ज करने, उनकी निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधाओं और मॉनिटरिंग के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। निवेश सारथी पोर्टल ने राज्य में निवेशक संपर्क व संबंध का पूरा तरीका बदल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमारे ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र के अधीन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। इससे निवेशकों को पारदर्शी ढंग से इंसेंटिव भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ITES डेटा सेंटर, ESDM डिफेंस एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, MSME सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र इकोसिस्टम बनाने में सुधारात्मक कदम उठाए हैं। हमारी अधिकांश नीतियों में एक संरचनात्मक परिवर्तन किया गया जिससे एक प्रतिस्पर्धी और सहायक प्रोत्साहन ढांचा सर्जित हुआ है। उत्तर प्रदेश ने
भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में और लॉजिस्टिक सुगमता में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का तेजी से विकास कर रही है। भारत में घोषित 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश की नीतियों के कारण, यहाँ की अच्छी कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, बिजली की अच्छी व्यवस्था के कारण आज एक अच्छा गंतव्य बनकर के भी ये उभरा है। अंत में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अद्वितीय निवेश अवसरों के प्रति उत्सुकता के लिए निवेश समुदाय, भाग लेने वाले संगठनों और औद्योगिक संघों को धन्यवाद देता हूं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसवंत सैनी जी, बहुत हम आभारी हैं आपके। Of this entire session has been none other than Invest UP. So I'd like to thank Invest UP for putting in so many efforts, so much of efforts and their time into presenting a session of this stature. And with that, on that note, I would request the Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh, and the CEO of this very esteemed organization, Invest UP, Shri Abhishek Prakash ji, to please come on the stage to present the vote of thanks. Thank you so much. I take this opportunity to sincerely thank all our esteemed guests and especially मैं विशेष धन्यवाद दूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जसवंत सैनी जी से, जो हमारे औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विकास विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। माय सिंसियर एंड स्पेशल थैंक्स टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटीडी श्री अनिल कुमार सागर जी, सीईओ यूपी सीडा श्री मयूर महेश्वरी जी, सीईओ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी श्री अरुणवीर सिंह जी, our two esteemed special guests who have been part of our success story in this of industry, Shri Neeraj ji, who is MD of Shree Cement, Dr. Narendra Kumar ji, who is Executive Director, Torrent Group, colleagues and friends from the industrial associations, champions of industries, our industrialists present here, friends from media, our officials from Government of UP and IEML, ladies and gentlemen, other dignitaries, I take this opportunity to thank all of you to attend this very informative session on the opportunities which are now available in the state, how the state has transformed in the years under the visionary and great leadership of Honorable Chief Minister, and the way our industrial development authorities are working 24/7 to facilitate the investors, to facilitate all of you. Once again, I take this opportunity to request all of you to explore UP more and more, invest in UP, and become a part of success journey of this state. Towards the end, I sincerely thank the officials of IEML and officials and my colleagues from Invest UP to make this session a fruitful session. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Prakash. And now I would request our Honorable Chief Guest, Shri Jaswant Saini ji, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमारे स्पीकर्स को, श्री नीरज अखौरी जी को ODOP, जी हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये गिफ्ट दें अपने हाथों द्वारा. Can I have the gift, please? This very memorable souvenir being
presented to Shri Neeraj Akhoury ji. Zordar taaliyan ho jaएं. Our Honorable Speaker, one district, one product, and also to Dr. Narendra Kumar ji, Executive Director, Group. चाहूंगी श्री जसवंत सैनी जी उनको अपने हाथों द्वारा ये one district, one product का छोटा सा गिफ्ट दें. Thank you so very much to all our speakers. Thank you so very much to our chief guest. बहुत बहुत शुक्रिया. And of course, ladies and gentlemen, thank you so much for devoting your time to this very knowledgeable session. The tea coffee arrangement has been done. And please enjoy the rest of your evening. Thank you.